James chapter 1 verse 25 to 28. لیکن جو شخص آزادی کا کامل شریعت پر غور سے نظر رکھتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے مگر اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خاص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم ورس 25 کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے اور میں اس 25ویں آیت کو آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں، پلیز غور سے سنیں۔ لکھا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، یہ کنٹینیو عمل ہے، کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا۔ کیا پائے گا؟ برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے جنریشنل بلیسنگز، نسلی یا خاندانی برکات۔ آپ نے جنریشنل کرسز کے بارے میں بہت سنا ہوگا، لیکن بہت کم جو ہے ہم جنریشنل بلیسنگز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے جنریشنل بلیسنگز جو ہیں، جو باپ دادا سے چلی آتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اور اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا ہے آزادی کی کامل شریعت، اور جب میں نے اس خط کا انٹروڈکشن شیئر کیا تھا اس وقت میں نے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، اور اگر بھول گئے ہیں تو آپ اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہے میسج کا، تو آپ اس کو ضرور دوبارہ سے اس کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آزادی کی کامل شریعت ہوتی کیا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے کلام پر عمل کرنے کی برکات، یعنی اس شخص کی برکات جو کلام کو سن کر بھولتا نہیں بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بھولتا نہیں۔ اور اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کلام ختم ہوا ساتھ ہی ہم بھول گئے، نیچے جا کر پوچھے نا کہ اوپر کیا کلام سنایا تھا تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس سنایا، اینی چھتی بول جائیں۔ تو یاد رکھیں اگر ہم بھولنے والے ہیں تو پھر خدا کے کلام کا اثر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور پچھلے اتوار میں نے یہی بات بتایا تھا بہت تفصیل کے ساتھ کہ اگر ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم محض اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، صرف اپنے آپ کو ہم سیٹسفائی کرتے ہیں کہ جی آج ہم چرچ گئے تھے اور ہم نے کلام سنا تھا۔ کیا کلام سنا تھا پتہ نہیں۔ اوکے، آج سب نے حوالے کو 2 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا نا، اور جب بھی 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو میں اس میں سے سوال ضرور پوچھتا ہوں، یہ یاد ہے کہ نہیں؟ اوکے، آج آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ لوگ پروگرامز پہ جاتے ہیں یا نہیں؟ شادی پہ جاتے ہیں، بیاہ پہ جاتے ہیں، پروگرامز، گانوں کے پروگرام میں جاتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، ایون کہ نہیں تو ایئرپورٹ کسی کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا ٹرین پہ کسی کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا بس سٹینڈ پہ کسی کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں اور آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں وہ ابھی تک کوئی تو اس پروگرام میں کوئی بھی نہیں آیا، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر انتظار کرتے ہیں۔ انتظار میں کیا کرتے ہیں؟ انتظار تو ہر کوئی غصہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اس بندے کو آپ کال کر لیتے ہیں کہ پوچھ لیتے ہیں کہ کب تک آئیں گے، اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، جا کے کافی پینے کے لیے کہتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے کافی پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہاں جی، باہر کہیں اور جگہ وہاں فیس بک یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی دوست کو کال کر کے وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں۔ اوکے، اور ہاں جی، غصہ بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ پروگرام کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں دوسروں کے پتہ نہیں کب شروع ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ
آتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے تو چلو گھر چلتے ہیں, گھر جا کے سوتے ہیں. کبھی ایسا کیا کسی نے کہ پروگرام کینسل ہو گیا, 5-10 منٹ لیٹ ہونے کے بعد آپ نے یہ سمجھا کہ شاید پروگرام کینسل ہو گیا؟ آپ نے سر کیا کبھی؟ آپ نے کیا, گھر چلے گئے چھوڑ کے پروگرام, اوکے. لیکن ایسا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, ہے نا. جب کسی چیز میں ڈیلے ہوتا ہے, جب کسی چیز کو جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس کے ملنے میں جب تاخیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے, وہ ایونٹ کینسل ہو گیا ہے, یا جس شخص نے آنا ہے وہ آ ہی نہیں رہا, وہ واپس وہیں سے اپنے گھر چلا گیا بغیر ہمیں بتائے. تو یاد رکھے میرے عزیزو, خدا بھی ایسا نہیں کرتا. بہت دفعہ خدا کی بلیسنگز کو, خدا کی برکات کو ہماری زندگی میں آنے کے لیے ڈیلے ہوتا ہے, ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ جو انتظار ہے وہ ہماری بے صبری میں ہمیں ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے, فرسٹریشن کی طرف ہمیں لے جاتا ہے, اور پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں نہیں خدا نے تو شاید اپنا منصوبہ کینسل کر دیا ہمیں برکت دینے کا, شاید خدا واپس چلا گیا, شاید خدا ہمیں برکت دے گا نہیں, شاید خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا نہیں, شاید خدا ہماری دعا کو سنے گا نہیں, شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے, یا شاید ہم خدا کو پسند ہی نہیں آئے. اور ہم مختلف طرح کے تخیلات کا شکار ہو جاتے ہیں. خود سے ہم اپنے اندر جو ہے وہ ایک ڈیسیژن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کہ اچھا اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, delay doesn't mean that God is denying it. دیری کا مطلب یہ نہیں کہ خدا انکار کر رہا ہے. شاید خدا ہمیں انتظار کروا کے کچھ سکھا رہا ہو, کچھ بتا رہا ہو, یا کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو. اکثر لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں, شاید آپ کا بھی یہ تجربہ ہوا, میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ دس چائلڈ واز ناٹ گاڈس پلان, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اس کا, اور یہ ہو گیا, یہ ہمارے گھر میں آ گیا. کبھی کسی کا ایسا تجربہ ہوا؟ ایک ہے پیچھے, ہاں جی. بہت سارے خاندان ایسا کرتے ہیں کہ سم ٹائم وی گیٹ بلیسنگس انپلانڈ بلیسنگس جو ہے وہ خدا ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے. تو شاید آپ کو تو نہیں پتا کہ خدا آپ کو برکت دینے کو ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا چلتا خدا کی برکات کا آپ کی زندگی میں آنے کے لیے, لیکن خدا کو سب پتا ہوتا ہے. جس بچے نے آنا ہے, جس کام کو خدا نے آپ کی زندگی کے لیے کرنا ہے, خدا اس کو وے بیک پہلے سے پلان کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوئے, یو آر ان دی مائنڈ آف گاڈ, یو آر ان دی ہارٹ آف گاڈ. آپ خدا کے دل اور دماغ میں تھے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا, اور خدا نے جب مجھے دیکھا تو پھر اس نے مجھے بنایا اس امیج کے مطابق جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتا تھا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وی آر گاڈس ماسٹر پیس, ہم خدا کا شاہکار ہیں. اور خدا نے جب ہمیں بنایا تو اس نے کہا واہ اچھا ہے, ہی واز پلیزڈ, وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوا. تو میرے عزیزو, خدا نے جو کلام ہمیں دیا ہے وہ خدا نے ہمیں اس لیے دیا ہے, اور خدا نے اس لیے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم جنریشنز کے لیے باعث بلیسنگ ہوں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت ہوں. وی آر ناٹ بائی چانس, وی آر ناٹ بائی انسیڈنٹ اور بائی ایکسیڈنٹ. یہ نہیں کہ ہم نے پلان نہیں کیا, ہمارے ماں باپ نے پلان نہیں کیا اور ہم اس دنیا میں آ گئے. نو, شاید آپ کے والدین نے آپ کو پلان نہیں کیا, لیکن خدا نے آپ کو پلان کیا ہے. خدا نے آپ کے لیے منصوبہ بنایا ہے. خدا نے آپ کی زندگی کی ہر ایک ڈیٹیل کو اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور خدا نے سوچ سمجھ کر آپ کو بنایا ہے. یو آر ناٹ اے مسٹیک, یو آر سو پریشس. آپ خدا کی نظر میں نہایت قیمتی ہیں. تو میرے عزیزو, جب خدا نے ہمیں بنایا ہے تو پھر ایک منصوبے کے ساتھ بنایا ہے, اور اس کا وہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں. ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بڑھوتری, ترقی اور خوشحالی کا باعث ٹھہریں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام پر سن کر عمل کرتے ہیں وہ باعث برکت ہوتے ہیں. ایسے ہی نہیں آ جاتی برکت, اور عمل کرنے کے لیے ہمیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے,
अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है, अपने गुरूर, घमंड और तकब्बर को एक तरफ रखना पड़ता है और फिर अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर खुदा के कलाम की ब्लेसिंग्स जो हैं वो ना सिर्फ आपकी जिंदगी में बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगी में भी आएगी। क्योंकि आप यहां पर हैं आज अगर मौजूद तो हादसाती तौर पर नहीं है, आप इसलिए आज यहां पर मौजूद हैं ताकि आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए बाइस से बरकत बन सकें। खुदा ने अब्राहम को बुलाया और खुदा ने अब्राहम को चुना और उसे कहा कि तू अपने बाप के घराने को, अपने नातेदारों को, अपने शहर को, अपने मुल्क को छोड़कर एक अनजान मुल्क में चला जा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने खुदा के कलाम पर अमल किया, बगैर चून चरा किए, बगैर सवाल किए वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। और जब उसने खुदा के कलाम के ऊपर अमल किया तो फिर खुदा ने उसे बाइस से बरकत बनाया, ना सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि उसकी आने वाली नस्लों के लिए भी। और खुदा ने उसे बरकत देने का वादा किया और खुदा अब्राहम ने खुदा के कलाम के ऊपर अमल करके अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो बरकत का दरवाजा है वो खोल दिया। आप सब इसको पढ़कर देख सकते हैं, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3 में यहां पर 5 ब्लेसिंग्स का जिक्र है जो अब्राहम की जिंदगी में खुदा के कलाम पर अमल करने की वजह से आई। खुदा ने कहा उसे कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। बड़ी कौम बनाने से मुराद यह है कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, तेरी औलाद कामयाब होगी, सक्सेसफुल होगी। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा हमारी आने वाली नस्लों को बरकत देगा। खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, सिर्फ तेरी औलाद को ही नहीं बल्कि तुझे भी बरकत दूंगा। और अब्राहम, आप सब जानते हैं कि बड़ा मालदार आदमी था। खुदा ने उसे मटीरियल ब्लेसिंग्स की बरकत दी और फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। सिर्फ एक कौम का नहीं, सिर्फ एक खानदान का नहीं, बल्कि कौमों का बाप बनाने के लिए उसे कहा। और ये उस वक्त हुआ जब उसने खुदा के कलाम के ऊपर अमल किया। ऐसे ही ब्लेसिंग नहीं आ जाती है। और फिर तीसरी ब्लेसिंग खुदा ने उसे दी और उसे कहा कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, मैं तेरे नाम को अपलिफ्ट करूंगा, तेरा नाम मशहूर हो जाएगा। और मशहूरी सिर्फ यही नहीं है कि जी हम शोबिज़ में चले जाएं और हर बंदा हमें जान जाए। नो, दैट फेम इज नॉट विच गॉड इज टॉकिंग अबाउट। ये वो मशहूरी नहीं है जिसका खुदा बात कर रहा है, बल्कि खुदा के कलाम में यहां पर लिखा है कि तू अपनी औलाद के लिए और अपनी आने वाली औलाद की औलाद के लिए एक लेगेसी छोड़कर जाएगा और वो तेरे नाम से होगी और वो तेरे नाम का जिक्र करके अपने आप को तेरी मानिंद बनाने की कोशिश करेंगे। ये वो नाम है जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है ताकि हम अपनी औलाद के लिए छोड़कर जा सके। कभी सुना है आपने, लोग कहते हैं ओ मेरा दादा, मेरा परदादा अंग्रेजों का कि आर्मी में काम करता था, फौज में काम करता था, और वो वडेरा था, वो एमए था, वो वजीर आजम था, वो ये था, वो था। हम अपने बाप दादा के को याद करके उनकी मिसालें देते हैं। तो क्या हम आज जिस सिचुएशन में हैं, हमारी आने वाली नस्लें हमारी मिसाल दे सकेंगी? या फिर वो यही कहेंगे ओ मेरा दादा जड़ना ओ बड़ा लड़ाका सी, हाँ, ओ मेरा दादा बड़ी शराब पीने वाला, ओ मेरा दादा बड़ा जुआ खेड़दा हुंदा, ओ मेरा दादा जड़ना ओ तो महल्ले च किसी नूं खलोन नहीं देंदा हुंदा। इस तरह की बातें हैं जिन पर हम फख्र करेंगे। या हम ये कहेंगे कि मेरा दादा जो है वो एक ईमानदार शख्स था, वो खुदा के साथ वफादार था, वो खुदा से प्यार करने वाला था, वो अपने सारे दिल से खुदा की राहों पर चलने वाला शख्स था। हम अपने बच्चों के लिए कैसी लेगेसी छोड़कर जाएंगे? और फिर जब अब्राहम ने खुदा के कलाम पर अमल किया तो खुदा ने उससे कहा कि जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे, सिर्फ उसका खानदान ही नहीं। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको खुदा दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनाना चाहता है, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए बरकत का बाइस बनाना चाहता है, सिर्फ अपने ही लिए नहीं। तो मेरे अजीजों, आज दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जो है वो अब्राहम को अपना रूहानी बाप मानते हैं और वो उसकी मिसालें देते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। अब्राहम ने अपने सारे दिल के साथ खुदा के कलाम को माना और यूं वो खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा के कलाम पर अमल करना हमारी लानतों को बरकतों में बदल देता है।
जो लानते हमारी जिंदगी का पीछा करती हैं, खुदा उनको कट करके हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग के फ्लो को बहाल कर देता है। आप सब लावी के कबीले को जानते हैं। जानते हैं लावी कौन थे? काहिन, काहिनों का कबीला था। लेकिन पता है काहिन वो कैसे बने? आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप जेनेसिस चैप्टर 34 को पढ़कर जरूर देखिएगा कि लावी का कबीला ऐसा था जिसके ऊपर याकूब ने, उनके बाप ने लानत की थी, लानत की थी उसके ऊपर। और आप सब इस कहानी को जानते हैं कि लावी, जब लावी और शमौन की जो बहन थी, जब सिकम के एक शख्स ने उसको किडनैप करके उसके साथ ज्यादती की और फिर उन्होंने कहा कि अब हम हमारी आपस में शादी कर दो ताकि ये मसला रफा दफा हो जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आप हमारी कौम के नहीं है इसलिए हमारा आपके साथ कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता, तो बेहतर यह है कि जैसे हमारा सर्कमसिशन हुआ है, जैसे हमारा खतना हुआ है, तो आप भी सारे मर्द जो है अपने खतना करवाओ ताकि हम एक कौम बन जाएं। तो फिर इस तरह से हम अपनी बहन आपको दे देंगे और आपकी बहनों को हम अपने घर ले आएंगे। तो वो मान के राजी हो गए। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तीसरा दिन हुआ, सब मर्दों का खतना हो गया, और जब तीसरा दिन हुआ, जब वो सारे नहायत दर्द में मुब्तला थे तीसरे दिन, तो ये लावी और शमौन दोनों भाई गए और इन्होंने जाकर सिकम के सारे मर्दों को कत्ल कर दिया, उनकी औरतों और बच्चों को असीर बना लिया, उनके घर बार और उनकी दौलत को लूट लिया और उनके माल मवेशी को ले लिया। और जब याकूब को यह बात पता चली तो वो नहायत गुस्से हुआ। उसने कहा कि ये अब आसपास के जो लोग हैं वो हमें देखकर तो हम पर हमला करेंगे और हमें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, हमारा सत्यानाश कर देंगे। तुम तो हमारे ऊपर एक बड़ी आफत ले आए हो। और इस वजह से, उनके गुस्से की वजह से, उनके कहर की वजह से, उनके इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उन्होंने उस अहद को तोड़ा था जो उन्होंने सिकम के लोगों के साथ किया था, तो इस वजह से याकूब ने, आप इसको जेनेसिस चैप्टर 49 में पढ़कर देख सकते हैं, जब याकूब ने अपने सारे बच्चों को बरकत दी तो उसने लावी को, लावी के औलाद को और शमौन की औलाद दोनों को लानत किया। दे वर अंडर कर्स, वो लानत के मातहत आ गए। लेकिन याद रखें, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो वो लानतें जो हैं वो बरकत में बदल जाएंगी। और खुदा ने इस खानदान के लिए, लावी के कबीले के लिए ऐसा ही किया। इन्होंने खुदा के कलाम की कदर की, खुदा के कलाम को माना। और आप सब जानते हैं कि कई नस्लें गुजर जाने के बाद जब मूसा पहाड़ पर गया और उसने जाकर खुदा से 10 अहकाम लिए, जब वो नीचे आया वो खुदा ने उससे कहा कि तेरे लोग तो भटक गए हैं और इन्होंने बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लग गए हैं, मुझे छोड़ दिया है। जब वो आया वहां पर नीचे, उसने देखा सारा नाच रंग जो हो रहा था, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो गुस्से में आया और उसने दोनों लोहे तोड़ डाली जिनके ऊपर खुदा के 10 अहकाम लिखे हुए थे। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नहायत गुस्से हुआ। और फिर जब गुस्से हुआ तो फिर आप इसको एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 26 में पढ़कर देख सकते हैं। खरूज 32वें बाब की 26वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं कि मूसा जो है वो लश्करगाह के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया जाकर, और उसने कहा कि जो जो मेरी तरफ है, जो जो खुदा की पैरवी करना चाहता है, वो इधर लश्करगाह के दरवाजे के पास मेरे पास आ जाए। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि लावी का कबीला जो था वो सबसे पहले भागकर, सबसे पहले जो है वो मूसा के पास पहुंचा। उन्होंने खुदा के कलाम को सबसे पहले कबूल किया, उन्होंने खुदा के कलाम को सबसे पहले माना। और फिर आप सब जानते हैं कि फिर खुदा ने इनके कलाम के ऊपर अमल करने की वजह से खुदा ने इस कबीले को अपने लिए चुन लिया कि लावी का कबीला मेरे लिए होगा और मैं लावी के कबीले के लिए होऊंगा और मैं खुद उनकी मेरास होऊंगा, और कोई दूसरे कबीले का कोई शख्स मेरी हजूरी में नहीं आ सकेगा। सिर्फ और सिर्फ लावी का कबीला ही था जिसमें से लोग पाक तरीन मकाम में दाखिल होते थे, खुदा की हजूरी में दाखिल होते थे। दैट इज द ग्रेस। ये वो फजल है जब हम खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हैं। और फिर लावी के कबीले के लोगों ने खुदा के कलाम के ऊपर अमल करके तो अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए खुदा की बरकत के दरवाजे खोल दिए। अभी तक लावी के कबीले के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहानत का काम करते हैं, खुदा की हजूरी का काम करते हैं, खुदा की खिदमत का काम करते हैं। आप सब दाऊद को जानते हैं। दाऊद के बारे में सुना है किसी ने? है ना?
सबने सुना कि नहीं? दाऊद ने अपने सारे दिल के साथ खुदा के कलाम पर अमल किया और खुदा ने दाऊद के बारे में कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया है। और दाऊद खुदा के कलाम पर अमल करके खुदा के दिल के मुआफिक शख्स बना, तो खुदा ने उसे बरकत दी और कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा ने उसे खूब बढ़ाया। और ज़बूर 23 और उसकी 6 आयत में लिखा है, साम 23 वर्स 6 में लिखा है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। यहां पर लिखा है कि उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, भलाई और रहमत। और साथ साथ रहने के लिए जो अब्रानी लफ्ज है वह है रादफ, रादफ, जिसका मतलब है टू रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना या किसी को चेज करना। तो यहां पर खुदा का कलाम कहता है और दाऊद कहता है कि यकीनन खुदा की बरकत जो है वो मेरा पीछा करेंगी, मेरे पीछे पीछे आएंगी। मुझे बरकत के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि खुदा की ब्लेसिंग जो है वो मुझे चारों तरफ से घेरे रहेंगी और मेरे पीछे पीछे आएंगी। जब दाऊद ने खुदा के कलाम पर अमल किया तो खुदा ने उसकी आने वाली नस्लों को बरकत देने का वादा किया। खुदा ने कहा कि हुकूमत और इख्तियार जो है वो तेरी नस्ल से जाता नहीं रहेगा। और खुदा ने कहा कि मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है वो तेरी नस्ल से आएगा। यह है खुदा के कलाम के ऊपर अमल करने की बरकत कि उसने ना सिर्फ अपने आप को सिक्योर किया बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी उसने बचा लिया। दाऊद के बाद आप सब जानते हैं कि उसका बेटा सुलेमान जो है वो बादशाह बना। और सुलेमान कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपनी उम्र के आखिर में बहुत लिबरल हो गया था, बहुत आजाद ख्याल हो गया था। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसने बहुत सारी गैर कौम की औरतों के साथ शादी कर ली और उन औरतों ने सुलेमान का दिल जो है वो खुदा की तरफ से फेर दिया था। उसका दिल खुदा के साथ खालिस नहीं रहा था, लेकिन खुदा ने उसको सजा फिर भी नहीं दी, खुदा ने उसको फिर भी नहीं छोड़ा। खुदा ने सुलेमान से कहा क्योंकि तेरा बाप जो है वो मेरे साथ वफादार रहा है, उसने अपने सारे दिल से मेरे कलाम के ऊपर अमल किया है, इसलिए मैं तेरी हुकूमत को खत्म नहीं करूंगा बल्कि मैं तुझे कायम रखूंगा, तेरी हुकूमत को कायम रखूंगा। और यूं खुदा ने उसे बरकत दी। दाऊद के वसीले से सुलेमान को बरकत मिली। और फिर हम ये देखते हैं तकरीबन 350 साल के बाद, आप अगर तवारीख की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हिजकिय्याह जो है जो दाऊद की नस्ल में से था वो बादशाह बना। और जब वो बादशाह बना तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसकी चारों तरफ की जो कौमें थी उन सब ने एका कर लिया ताकि वो यरूशलेम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर हमला करें। तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि हिजकिय्याह ने खुदा को पुकारा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा को पुकारा। तो जब उसने पुकारा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे कहा, उसे जवाब दिया कि मैं तेरे बाप दाऊद की वजह से तेरी मदद करूंगा। किसकी वजह से मदद करूंगा? तेरे बाप दाऊद की वजह से, क्योंकि उसने पूरे दिल के साथ मेरे हुक्मों को माना है। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम को मानेंगे, खुदा के कलाम के ऊपर अमल करेंगे, तो आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए खुदा की बरकत के दरवाजे खोल देंगे। और ड्यूट्रोनमी चैप्टर 5 वर्स 9 और 10 में लिखा है, इस्तिस्ना 5 बाब की 9 और 10 आयत में लिखा है कि जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारदारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। कितनी पुश्तों तक खुदा रहम करता है? हजारों पुश्तों तक। लेकिन सजा कितनी दो पुश्तों को देता है? तीसरी और चौथी नस्ल तक। लेकिन अगर कोई हरामजादा हो तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके गुनाह की सजा जो है वो 7वीं पुश्त तक भी जाती है। और हरामजादा कहते हैं जो आउट ऑफ वेडलॉक जो पैदा हो। तो यहां पर खुदा का कलाम बयान करता है कि वो 1000 पुश्तों तक अपने रहम को कायम रखेगा। तो मेरे अजीजों, क्या हम आज तैयार हैं? क्या हम कुछ ऐसा करने को हैं कि हम अपनी आने वाली 1000 पुश्तों तक बरकत को छोड़ जाएं, उनके लिए खुदा की बरकत के दरवाजों को खोल के जाएं, ताकि खुदा की बरकत जो है वो उनकी जिंदगी में मुसलसल कंटिन्यू रहे और उसमें कभी कोई किसी चीज की कमी ना आए। तो मेरे अजीजों,
जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो अपनी आने वाली हजारों नस्लों के लिए खुदा की बरकत के दरवाजों को खोल देते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। क्या लिखा है? कि तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इसको जरा उल्ट करके देखें, इसको जरा उल्ट करके देखें, क्या बनता है? तू गुनाह कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? सजा पाएगा, सजा पाएगा। तो याद रखें मेरे अजीजों, आज हम जो कुछ भी करेंगे हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ जरूर छोड़कर जाएंगे। अगर गुनाह करेंगे तो अपने आने वाली नस्लों के लिए सजा के दरवाजे खोलकर जाएंगे, और अगर खुदा के साथ चलेंगे तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए खुदा की बरकत को छोड़कर जाएंगे। और खुदा हमें अपनी बरकत से मालामाल करना चाहता है, खुदा हमें लानत नहीं करना चाहता। तो मेरे अजीजों, अभी मैं थोड़ी देर के लिए 30 ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ने की वजह से हमारी जिंदगियों में आती है। 30 बरकत। पहली बरकत कि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा आपको गुनाह से दूर रखता है। जब आप कलाम के ऊपर अमल करते हैं तो खुदा कलाम के वसीले से आपको जिंदगी देता है। कलाम पर जब आप अमल करते हैं तो खुदा उसके वसीले से आपको एक नई जिंदगी देता है। जब आप कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा में आपको एक नई कुव्वत और ताकत मिलती है। जब आप कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको इंकरेज करता है, आपके हौसले को बढ़ाता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको अक्ल और फहम और दनाई बख्शता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको हकीकी खुशी और शादमानी अनायत करता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको सच्चाई के ऊपर कायम करता है, फिर झूठ आपको वर्गला नहीं सकता। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको हकीकी आजादी देता है, वो आजादी जो चंद रोजा नहीं बल्कि अबदी आजादी है। और फिर जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको हर तरह की शर्मिंदगी से बचाता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको एक नई उम्मीद दिलाता है, और वो उम्मीद फिर कभी खत्म नहीं होती। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा हर तरह के दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में आपको तसल्ली देता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको नई जिंदगी देता है, नए तौर से जिंदा करता है, ताकि आप खुदावन में एक नया जोर, कुव्वत, ताकत पाएं। और जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको हकीकी इत्मीनान देता है। वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो हकीकी इत्मीनान देता है जिसके वसीले से आप दुनिया और उसके हालात के ऊपर गालिब आ सकते हैं। और जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आप अपनी सारी उम्र भर खुदा की भलाई को देखेंगे, आप खुदा के कहर और गुस्से का सामना नहीं करेंगे। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो फिर खुदा हमें सही, हकीकी इम्तियाज और दानिश की रूह को अनायत करता है, ताकि हम अक्लमंदी के साथ जिंदगी बसर करें और अक्ल और दनाई में रहकर अपने जिंदगी के फैसला जात को कर सकें। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको गुमराही से बचाता है, आप फिर आसानी के साथ बहक नहीं जाते। खुदा के कलाम पर जब आप अमल करते हैं तो खुदा आपको दुनिया के माल और दौलत और खजानों से माला माल करता है। और जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, खुदा आपको एतमाद बख्शता है और आपकी खुद एतमादी को बढ़ाता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको हलाकत की रूह से, हर तरह की वबा से बचाता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो आप खुदा के हकीकी सच्चे पैरोकार बनते हैं। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको हर तरह की बदी से, गुनाह से बचाता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो आप खुदा के डर और खौफ में बढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर आप अपने आप को खुदा के सामने रास्ते की हालत में पेश करते हैं। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो फिर खुदा जो है और खुदा का कलाम जो है वो खुद आपकी वकालत करना शुरू कर देता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करते हैं तो फिर खुदा आपके अंदर से नफरत और करवाहट को, जो बिटरनेस और एंगर है, उसको आपकी जिंदगी में से निकाल बाहर करता है। जब आप खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हैं तो खुदा आपको इत्मीनान और शांति बख्शता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो आप निजात के हकदार बन जाते हैं, यानी आपको एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन होती है। और जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा हमारी तमाम रविशों को और बुरी आदत को बदल देता है।
खुदा के कलाम पर जब आप अमल करना शुरू कर देते हैं तो फिर खुदा आपको एक सच्चा हकीकी परस्तार बना देता है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो फिर खुदा का कुदरत वाला जलाली हाथ जो है वो आपके लिए बढ़ जाता है। तो ये सारी ब्लेसिंग जो है वो उस वक्त आपकी जिंदगी में आएंगी मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे। और जिन भी कलाम मुकद्दस में से मैंने मिसालें दी हैं उन सब ने खुदा के कलाम पर अमल किया। तो मेरे अजीजों, आज सवाल यह है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। याद रखें, जो कुछ आज आप करेंगे वो आप अपनी आने वाली नस्लों को कर्ज देकर जाएंगे, और आपकी आने वाली नस्लों को वो कर्ज अदा करना पड़ेगा ही, वो उनको देना पड़ेगा ही। अगर आपने अच्छे काम किए, खुदा के साथ रहे हैं, तो खुदा की ब्लेसिंग्स का कर्ज आप उनको दे के जा रहे हैं और वो ब्लेसिंग्स उनकी जिंदगी में आएंगी। और अगर आप गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर आप अपनी आने वाली नस्लों को सजा का कर्ज जो है वो देकर जा रहे हैं, जिसको उन्हें अदा करना ही पड़ेगा। तो याद रखें मेरे दोस्तों, बरकत खुदा की जो है ये आपका पैदाइशी हक है। दिस इज योर बर्थ राइट। और इसके लिए आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि इख्तियार के साथ इसको क्लेम करने की जरूरत है कि हां खुदावंद ये मेरा हक है और तू मुझे दे। और फिर खुदा यकीनी तौर पर आपको देगा। जब आप खुदा के वादे याद दिलाकर खुदा को कुछ करने के लिए कहेंगे तो खुदा यकीनी तौर पर आपके लिए करेगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम का इनकार नहीं कर सकता। कैन वी से आमीन? आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा हमें फजल दे कि हम अपने औलाद के लिए सोचें, जाने पहचाने कि हम अपनी औलाद के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, और हम अपनी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बाइस से बरकत होने के लिए हैं या बाइस से लानत। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 1 और 2 में लिखा है कि अब बरकत और लानत दोनों को मैंने तेरे सामने रख दिया है। और खुदा अब हमें यह हक देता है, पावर ऑफ डिसीजन खुदा हमें देता है कि हम चूज करें कि बरकत को अपनी आने वाली नस्लों के लिए इंतखाब करते हैं या लानत को। इसका इंतखाब खुदा ने मुझे और आपको दिया है। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें और कहें कि खुदा तू मुझे मेरी आने वाली नस्लों के लिए बाइस से बरकत बना, ताकि मैं उनके लिए बाइस से लानत नहीं बल्कि बाइस से बरकत बनूं, बाइस से तरक्की, बढ़ोतरी और खुशहाली का बाइस बनूं, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए सब दुआ करें, अपने अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करें और अपनी औलाद की औलाद के लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें बरकत दे, सलामती दे, बढ़ोतरी दे, तरक्की दे, खुशहाली दे, और खुदा उन्हें हर तरह के दुख से, गुनाह से और लानत से छुड़ाए। हालेलुया।